درخواست ہے بھائی شہریار پرویز سے کہ وہ سامنے آئے اور شکر گزاری کی دعا میں ہم سب کی رہنمائی کریں۔ ہلیلویا۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا قدس پاک خدا، اے مہربان باپ یسوع، ہم تجھے آج ویلکم کرتے ہیں، تجھے خوش آمدید کہتے ہیں خداوند پاک خدا۔ پوری دنیا کے اندر خداوند جہاں جہاں بھی تیری عبادات ہو رہی ہیں خداوند تیری شکر گزاریاں کر رہے ہیں تیرے لوگ، خداوند تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اے باپ یسوع، ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں تیری حضوری کے لیے، تیری معموری کے لیے اور تیرے آ جانے کے لیے۔ خداوند ہمارے دل تیری شکر گزاریوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ خداوند پاک خدا، آج صبح تو یہاں پہ اترا ہوا ہے اور تیرا تخت یہاں پہ لگا ہوا ہے۔ اے خداوند پاک خدا، آج تیرے پیارے تیرے ہلیلویا کہہ کے، ہوشنا کہہ کے خداوند تجھے مبارک کہہ رہے ہیں خداوند پاک خدا، اور تجھے جلال دے رہے ہیں خداوند پاک خدا۔ عبادت کے سارے پروگرام کو شروع سے لے کر خداوند پاک خدا تیرے کبھی ہاتھ میں دیتا ہوں۔ اے باپ یسوع، تیرا یہاں پہ عبد چھایا رہے اور پاک تو ایک لمحہ بھی ہم سے جدا نہ ہونے پائے۔ خداوند پاک خدا، جتنے تیرے پیارے تیرے حضور اس وقت آ چکے ہیں اور جتنے تیرے بیٹے اور بیٹیاں راستوں میں ہیں اور خداوند تیرے گھر میں آنے میں، خداوند ان کی بڑی مدد اور سہایتا کرنا تاکہ وہ خداوند پاک خدا تیرے حضور آئیں اور اپنے دلوں کے نذرانے تیرے حضور پیش کرے۔ خداوند پاک خدا، ہاؤس آف پریئر چرچ کی پوری ٹیم کے لیے، پاسٹر خورشید صاحب کے لیے اور خداوند ساری انتظامیہ کے لیے خداوند پاک خدا، اور پوری کلیسیا کے لیے خداوند تیری خاص برکت کو میں مانتا ہوں۔ اے باپ یسوع، تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے۔ اے خداوند پاک خدا، آج ہم سب تجھے عزت، عمر اور جلال دیتے ہیں۔ یسوع کے نام سے یہ دعا مانتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آمین آمین۔ مکاشفہ پہلا باب اس کی 18 آیت میں لکھے، اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ آئے زور لگا دیں مجھے کہ اس کی جلال کے لیے، اس کے نصرت کے لیے، اس کی نبوت کے لیے ہم آنے بجاتے ہیں، خوشی سے اس کی پرستش کر کے اس کی ستائش میں آگے بڑھیں گے۔ سولی والا جت گیا تے جب ابلیس نے سولی والا جت گیا تے جب ابلیس نے رب سارا دنیا دیا فوجا اتے بھاری سولی والا جت گیا تے جب ابلیس نے ہاری باغے عدن دی چھڑی سی جیڑی بازی آدم ہار گیا یسوع آیا دنیا تے او ڈوبی بیڑی تار گیا باغے عدن دی چھڑی سی جیڑی بازی آدم ہار گیا یسوع آیا دنیا تے او ڈوبی بیڑی تار گیا او قبر چوں اٹھ کے موت دے منہ تے ماری سٹ کراری قبر چوں اٹھ کے موت دے منہ تے ماری سٹ کراری رب سارا دنیا تیاں فوجا تے بھاری سولی والا جت گیا تے جب ابلیس نے ہاری سولی والا جت گیا تے جب ابلیس نے ہاری فوجا تے بھاری سولی والا سٹ کے ہوئے نواسے او سولی والا جت گیا تے رب سارا
हस्ती से तुझे, कुछ ना उसका सर उसे खाक में मिला दिया। दे के शिकस्त फाश मौत और कब्र को, हैकल के दर से तूने पर्दा हटा दिया। आसमान पर खुदा की रहनी तरफ बैठकर दिल के हलीम लोगों को तख्त पर बैठा दिया। अदल का मुसाफिर जो सैराबों में गुम हो गया था, उसी गुमराह को तूने अपने घर पहुंचा दिया। कौन देता है जान किसी दूसरे के वास्ते, जान अपनी देकर तूने करिश्मा दिखा दिया। मौत के चुंगल से आजाद होना मुमकिन ही ना था, कुर्बान होकर तूने ये मुमकिन बना दिया। शक्कर है ये तेरी कि तूने नाचीज को खाक से उठाकर आज अर्श पर उठा दिया। जिंदा होके कब्र से दुनिया को ये बता दिया, तू ही है खुदा, हकीकत से पर्दा हटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे दरमियान वसीमा क्रिस्टोफर और अलीजा क्रिस्टोफर है जो ईस्टर के हवाले से गीत पेश करना चाहती हैं, तो आइए जोरदार तालियों में इनको वेलकम करेंगे। आपकी तालियों की आवाज बहुत कम है, जोरदार तालियां दी जाएंगी। बहुत ज्ञानवारी के साथ इस चर्च में खिदमत को सर अंजाम देती है, तो जोरदार तालियां दी जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश हैं? सब लोग बहुत उदास उदास देख रहे हैं। मेरे ख्याल में नींद नहीं पूरी हुई, इस वजह से चेहरे भी थोड़े उदास उदास हैं। लेकिन हम यहाँ पे यीशु मसीह के जी उठने की खुशी में इस इबादत में जमा हुए हैं। हालेलुया। तो हमें खुशी से उसकी प्रस्तुति करनी है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएंगे उसका जलाल के लिए। असबर के उसके नाम से बहुत जलाल है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलाम। हमारी तरफ से हैप्पी रेजरेक्शन डे, ईद क़यामत मसीह आप सबको मुबारक हो। और आज हम ईस्टर के हवाले से एक गीत पेश करेंगे। हालेलुया। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। Oh
झुकाएंगे उसके हुजूर में और मेरी दरख्वास्त है मुझसे नाशर आखिर से कि वो सामने आए और शुक्र गुजारी की दुआ में हम सब की रहनुमाई करें। तमाम ज़िंदगी अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने सिर को उसके हुजूर में झुका दीजिएगा। हालेलुया। ऐ ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक का लश्करों के रब, आसमान तेरा तख्त, ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी है। खुदावन हम तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ करते, तेरे बारगाह में आने के लिए खुदावन तूने आज फजल बख्शा खुदावंदा कि हम सब फिर आज तेरे नाम पर यहाँ पर इकट्ठे हुए। खुदावन आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावन तेरा शुक्र अदा करते कि तूने फजल बख्शा खुदावंदा कि हम इस ईद क़यामत मसीह को मना सके और खुदावन तेरी पाक हुज़ूरी में आ सके। खुदावन ज़िंदगी के लिए खुदावन तेरा शुक्र अदा करते कि तूने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा है। प्यारे बाप तेरा शुक्र करते खुदावन तेरी तमाम नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए, खुदावन तमाम वादों के लिए जो यकीनन सच्चे और हाँ के साथ है। प्यारे बाप यकीनन तो अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है और हम सबों को बरकत देना चाहता है। प्यारे बाप तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरा शुक्र करते कि दुनिया के माबूद तो महजबूत है लेकिन हमारा खुदावन जिंदा खुदा है जो मौत, कब्र और इब्लीस पर फातेह खुदा है। प्यारे बाप तेरी कब्र जो आज भी खाली है खुदावन, तेरा शुक्र करते इस बात के लिए कि खुदावन के तू हमारी दुआओं को सुनता और खुदावन हमें जवाब देता और हमें कभी भी मायूस नहीं करता। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदावंदा इन खूबसूरत इबादत के लिए तेरा शुक्र अदा करते कि गुज़िश्ता इबादत में खुदावन तो हमारे साथ हुआ और कसरत की बरकत से मालामाल किया। खुदावंदा आज की इस इबादत को भी तेरे पाक हाथों में सौंपते खुदावंदा, शुरू से लेकर आखिर तक हम सबों के साथ होना, कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावन जिस तरह से तू चाहता खुदावन, क्योंकि तू खुदावन हमारा कुम्हार है, हम मिट्टी के बर्तन है खुदावन, जिस तरह से जो चाहता खुदावन हमें काट और छांट और हमने अपनी बादशाहत के लिए, अपनी दूसरी आमद के लिए खुदावन हमें तैयार कर खुदावन कि जब तू आए खुदावन तो खुदावन हम बड़ी दलेरी के साथ बादलों में उड़कर तेरा इस्तकबाल करें। मेरे बाप तेरा शुक्र हो क्योंकि तू जल्द आने वाला है खुदावंदा, हमें अभी से तैयारी बख्श दे खुदावंदा कि अपने पूरे प्योर हार्ट के साथ, पाक दिल के साथ तेरी पाक हुज़ूरी में आने वाले हो, अपने घरानों के लिए, अपने बच्चों के लिए तेरी बरकत को चाहते और जितनी कलीसिया यहाँ पर मौजूद हुई एक एक के ऊपर तेरी बरकत को चाहते खुदावन, कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावन और खुदावन इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हम सबों के साथ होना, अपने जहन को, सोचों को तेरे पाक ताबिया करते प्यारे बाप और अभी से अपने जहन को खुदावन तेरे कलाम के लिए तैयार करते कि आज का कलाम भी खुदावन 100 गुना फल लाने का सबब बने। तेरे खादिम को तेरे पाक लहू में छुपाती प्यारे बाप, आज भी अपने खादिम को उसी तरह से रूह की शोला की मालिन, आग की शोला की मालिन खुदावन का इस्तेमाल करना खुदावन और हम बरकत हासिल करें। प्यारे बाप तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो खुदावन, प्रेसिडेंट बेटी को तेरे पाक हाथों में सौंपते, उसके साथ होना, कसरत की बरकत से मालामाल करना कि जब वो बोलती खुदावन तो खुदावन इसी तरह से हम बरकत हासिल करें। प्यारे बाप तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो खुदावन, ये सभी कुछ मांगते और ईमान से पाते थे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से। आमीन आमीन हालेलुया। क्या हम सब अपने कदमों में बने हो कि उसकी सताइश करेंगे, उसकी प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और उसके नाम को ज़िंदा जला देंगे। तालियां बजाओ मुझको, हालेलुया। आगे बोलिए, कहोगे, अच्छा सारे 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 बोलिए, तालियां बजाओ मुझको, कहोगे तालियां बजाओ मुझको,
खुदा पर जो खुद भी जिंदा रहे अपने लोगों को भी जिंदों की ज़मीन पर रखा है। आसमानी बाप हम तेरे इस बेटे के लिए खुदा यीशु मसीह के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जिसको खुदा ने इस दुनिया में भेजा ताकि वो हम सबों के लिए फिदिया दे, हम सबों का कफारा बन जाए, हम सबों को हमेशा की जिंदगी का वारिस करे। हमारे दिल में शुक्रगुजारी से बने बस मेहनत करते खुदा आज अपने खाने के वसीला से एक नया भेद अपने लोगों को खोल दे। अपने कलाम को नाज़िल कर, अपने कलाम को नाज़िल कर। हम सारे मिलकर तेरे खादम को, तेरे कलाम को मिलकर बरकत करते हैं। तेरे शुक्र बस अपना जला हम सब इस मुसीबत से आमीन आमीन आमीन। अब वक्त है कि हम उसकी जिंदा आवाज को सुनेंगे, तो आए जोरदार तालियों में उसके जिंदा कलाम को और पास्टर खुशी अदा करेंगे। सब जगह जोरदार तालियों को बजाइए। हालेलुया। आप सब खुश हैं? क्यों खुश हैं? हालेलुया। आज मेरा यीशु मसीह जी उठा है, आज नहीं 2000 साल। हालेलुया हालेलुया। वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। इसकी आवाज थोड़ी सी कम कर। वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। और याद रखिएगा अपनी जिंदगी के अंदर आज तक किसी ने ये दावा नहीं किया कि मैं अल्फा भी हूं और मैं ओमेगा भी हूं, मैं अव्वल भी हूं। जी आवाज इसकी तरह थोड़ी सी। मैं अव्वल भी हूं और मैं आखिर भी हूं, इब्तिदा भी हूं, इंतहा भी हूं। आज याद रखिएगा किसी ने ये दावा नहीं किया, ये सिर्फ मेरे यीशु ने दावा किया है। हालेलुया। क्योंकि वो खुद खुदा था। हालेलुया। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, और जिसने बाप को देखा उसने मुझे देख लिया। जो काम मेरे बाप करता है वो बेटा भी करता है इस दुनिया के अंदर। हालेलुया। वो बेटा भी काम करता है इस दुनिया के अंदर। और याद रखिएगा अपनी जिंदगी के अंदर आज जो वो कह देता है वो हो जाता है। हालेलुया। वो तो बोलता है तो हिरनियों के हमल भी गिर जाते हैं। याद रखिएगा मेरा खुदा कादरे मुतलक खुदा है। आज ये दुनिया आपको अपनी गोद से गिरा देगी, लेकिन मेरा खुदा कादरे मुतलक खुदा है। वो आपको अपनी गोद में उठा लेता है और आपको बचाता और मुश्किलों में से निकाल लेता है। आज हम उस जिंदा खुदा की इबादत कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। जो हमें मौत में से भी निकालने की कुदरत रखता है। और वो हिजकिय्याह 37वें बाब में कहता है कि मेरा और आपका खुदा मुर्दा हड्डियों में भी जान डाल देता है। और याद रखिएगा हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो मुर्दा नहीं, जो जिंदा है। हालेलुया। मुर्दे नहीं सुन सकते। ज़बूर 88 जाकर पढ़ लीजिएगा 88। वो कलाम में कहता है मुर्दे खुदा का अजायब नहीं दिखाते, वो जो जिंदा है वही बोलेंगे और वही काम करेंगे। और मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। जिसने मौत और कब्र पर फतेह पाई है। हालेलुया हालेलुया। प्लीज जरा आवाज कीजिएगा थोड़ी सी। हालेलुया प्रेज। अभी खड़े रहेंगे। एक बेटी जेनिफर प्लीज जरा सामने आ जाए, इसकी मामा भी सामने आ जाए। ये इनका प्यार, ये इनकी मोहब्बत है जो अपने खादम के साथ करते हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि ये बच्चे इतना प्यार करते हैं अपने खादम से। इनके बड़े प्यार करते हैं मेरे साथ। सो खुदावंद
इस बेटी को बहुत बरकत दे। इसके दिल में आया कि आज मैं खुदा के खादम को माला पहनाऊंगी, तो खुदा इसको बरकत दे। अभी से ये बच्चे सीख रहे हैं कि हम अपने बड़ों की इज्जत करेंगे तो इस दुनिया में हमारी उम्र दराज होगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। ये बच्ची का प्यार है, ये बेटी का प्यार है, ये इसकी मोहब्बत है कि उसने ये खुदा के खादिम के साथ की है ये मोहब्बत। सो खुदावंद आपको ढेरों बरकत दे बेटा, सदा कदो-कामत में बढ़े, उसकी पहचान में बढ़े और खुदा के नाम को जला दे और खूब कामयाब हो इस दुनिया के अंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। अब बैठ सकते हैं, आप सब बैठ जाइएगा। अब बैठे बैठे एक दूसरे का साथ हाथ मिलाइएगा और सबको कहिएगा ईद क़यामत मसीह मुबारक, ईस्टर मुबारक हो, यीशु का जी उठना मुबारक हो। हालेलुया। सबसे बढ़कर जिसके हम ईद मना रहे हैं, सब कहिए यीशु का जी उठना मुबारक हो। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाइएगा और सबको कहिएगा कि यीशु का जी उठना मुबारक हो। हालेलुया। अब सुबह मैंने देखा कि एक जुलूस ऐसे जा रहा है, एक इधर को आ रहा है, एक उधर को जा रहा है और फिर वापस। और याद रखिएगा, बड़ी ही खुशी की बात और बहुत ही खूबसूरत मशलें पकड़ी थी लोगों ने, मोमबत्तियां, कैंडल्स अपने हाथ में ली हुई थी, वो लिए यीशु के जी उठने की खुशी बना रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और याद रखिएगा, ये इबादत, ये रस्म किसी मजहब में नहीं बनाई जाती, ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीहत के अंदर बनाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम मुबारक लोग हैं जो हम अपने जिंदा खुदा की इबादत करते हैं और खुदा के नाम को जला देते हैं। याद रखिएगा, नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, मुबश्शिर आए, उस्ताद आए, ये फाइट फॉर मिनिस्ट्री। कलाम कहता है कि ये मर गए, दफन हो गए, कब्रों में चले गए, इनकी हड्डियां मिली या ना मिली, या उनकी कब्रों के ऊपर कब्रें बन गई, पता नहीं कितनी तय उनके ऊपर लग गई, पता नहीं कितने शहर जो बर्बाद हो गए, कितने कब्रिस्तान बर्बाद हो गए, कितनी कब्रें जो है जमीन के अंदर धंस गई। लेकिन याद रखिएगा, अपनी जिंदगी के अंदर मेरे यीशु की कब्र आज भी खाली है और खाली रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि उनकी तो हड्डियां भी गल गई, लेकिन मेरे यीशु कब्र में गया जरूर, लेकिन तीसरे दिन जिंदा हो गया। हालेलुया, आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। सो आए, आज इस सच्चाई को आज हम कलाम मुकद्दस में से चंद मिनटों में हम देखेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। निकाले मेरे साथ खुदावंद का कलाम खोलिएगा, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 31वीं और 32वीं आयत आज हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। सुनिएगा खुदावंद का कलाम क्या कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा गया है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। अब निकाले मेरे साथ मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील निकालिएगा, उसका 20वां बाब हम देखेंगे। और ये सच्चाई है इस दुनिया के अंदर। कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगियों में वाज़ेह करता है। पहली आयत से हम खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं और खुदा के नाम को आज इज्जत और जलाल देते हैं। कलाम में लिखा गया है, यहाँ पर जो इसका टाइटल है वो खाली कब्र है, यानी कि मेरे यीशु की कब्र खाली है। याद रखिएगा,
اگر لازر بھی زندہ ہوا، اگر اس کو 4 دن کے بعد میرے یسوع نے قبر میں سے نکالا تو اس کی پھر ڈیتھ ہوئی ہوگی، پھر وہ کسی نہ کسی کی قبر میں گیا ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا میرے یسوع کی قبر اپنی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ زمین کا نہیں، وہ آسمان کا ہے، اس کو آسمان پر جانا ہے. وہ تو صرف اپنا مشن، اپنا کام کمپلیٹ کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دینا تھا. کفارہ کا مطلب ہے ڈھانپ دینا کسی چیز کو. جس طرح کوئی ہنڈیا بنائی جاتی ہے، کوئی سالن تیار کیا جاتا ہے، اس کو اوپر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے اس میں چیز نہ گرے. اور یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر آج میں یہ بات آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے یسوع نے آپ کا کفارہ دیا ہے. ہاللیلویا. میرے یسوع نے آپ کا کفارہ دیا اور ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لے لیا اور ان کو ڈھانپ دیا ہے. پہلے ڈھانپے نہیں تھے، پہلے کھلے تھے. وہ ہمارے گناہ ہر سال معاف ہوتے تھے، ہر سال جو ہے وہ پھر کفارہ دیا جاتا تھا، بروں کا بچڑوں کا کفارہ دیا جاتا تھا. اس کے بعد یہ ذوقنی قربانی، آتشین قربانی، یہ جو خدا کی حضوری میں گزرانی جاتی تھی، یہ آسمان پر اس کی خوشبو پہنچتی اور خدا بلڈ کو دے کر جو ہے وہ ہمارے گناہ معاف کرتا تھا. بلڈ کو، خون کو دے کر ہمارے گناہ معاف کرتا تھا. لیکن یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر آج میرے یسوع نے اپنا لہو بہا کر ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیا ہے. ہاللیلویا. میرے یسوع نے اپنا لہو دے کر ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیا ہے. اور یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر یہ سچائی ہے کہ میرے یسوع کی قبر خالی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اپنے یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. جس نے میرے اور آپ کے لیے اپنا کفارہ دیا، جس نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان دے دی. اور یاد رکھیے گا کلام کہتا ہے کہ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. یسوع نے کیا کہا؟ راہ، حق اور زندگی. یعنی کہ حقانی بھی وہی ہے، سچائی بھی وہی ہے، راہ بھی وہی ہے. ایک ہی راستہ ہے اور کوئی دنیا کے اندر راستہ نہیں ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں، ہم جہاں سے مرضی جا کر جو کچھ مرضی کر سکتے ہیں، جو کچھ مرضی لے سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا اس دنیا کے اندر ابلیس بھی آپ کو دیتا ہے. ابلیس جو دیتا ہے وہ دے کر لے بھی لیتا ہے، وہ آپ سے چھین بھی سکتا ہے. لیکن میرا یسوع جب دے دیتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے دے دیتا ہے، وہ کبھی لیتا نہیں ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس لیے کلام مقدس میں لکھا گیا سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آج ایک ہی دنیا کے اندر سچائی ہے اور وہ میرا یسوع ہے. اور سچائی یہ ہے کہ اس نے موت اور قبر پر فتح پائی اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے. ہاللیلویا. جس کی عید آج ہم منا رہے ہیں، جس کی خوشی آج ہم منا رہے ہیں کہ میرا یسوع زندہ ہو گیا ہے. ہم نے گیت گائے، ہم نے خوشی کے ساتھ اس کی عبادت کی. اور خدا کا شکر ہے کہ صبح بہت ہی خوبصورت عبادت ہوئی. ایک بڑا جو ہے کلیسیا کا ایک بڑا مجمع جو ہے یہاں پر موجود تھا اور خدا کے نام کو جلال ملے. سب نے خوشی کے ساتھ اس کی عید منائی اور خدا کے نام کو جلال دیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور آج کلام مقدس میں یہ قبر خالی کے بارے میں کہا گیا. ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا. یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر یہ مریم مگدلینی کی محبت تھی خدا کے ساتھ. اور جیسا کہ صبح پاسٹر کیتھرین نے بتایا کہ یہ ایک بڑی مبشرہ تھی، ایونجلسٹ تھی، جس نے بعد میں بڑی روحیں بچائیں، زندگیاں بچائیں. جو پہلے بدروح گرفتہ تھی، 7 بدروحیں اس کے اندر تھی، یہ مشکل کے اندر تھی. یاد رکھے گا 7 قسم کی بدروحیں اس کے اندر پل رہی تھی اور یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی. زنا اس کے اندر تھا، برے کام اس کے اندر تھے. یہ دنیا سے کٹی ہوئی تھی، یہ خدا سے کٹی ہوئی تھی، یہ اپنے خاندان سے کٹی ہوئی تھی، یہ اپنے خاندان سے دور تھی. لیکن یاد رکھیے گا میرے یسوع نے جس کی آج ہم عید منا رہے ہیں، وہ یسوع جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، اس نے صرف دیکھا ہی اور وہ زندگی بحال ہو گئی. ہاللیلویا. یہ
इन बच्चों को दोबारा मत आने दीजिएगा। ये जो बच्चे भी गए हैं इनको दोबारा मत आने दीजिएगा, इनको बाहर रखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं ये बात आपकी जिंदगी में वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ आपकी जिंदगियों के अंदर। कलाम कहता है सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद। आज दुनिया में एक ही सच्चाई है और कलाम कहता है ये मरियम मगदलीनी की मोहब्बत थी, उसका प्यार था जो यीशु के साथ करती है, क्योंकि यीशु की बदौलत उसको शफा मिली है। आज याद रखिएगा अपनी जिंदगी के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको शफा मिल जाती है, उन्हें तो बाद नजर ही नहीं आते, 6-6 महीने गायब, साल गायब, और उसके बाद साल के बाद फिर यहां मुझे नजर आते हैं। फादर साहब हम तो उससे भी ज्यादा मुश्किल के अंदर, उससे भी ज्यादा परेशानी के अंदर। लेकिन ये मरियम मगदलीनी जिसमें से 7 बदरूहें निकली, जिसको शफा दी मेरे यीशु ने, जो जानती है कि यही जिंदगी का मालिक है, जो जानती है कि इसने मौत और कब्र पर फतेह पानी है, जो जानती है कि यही जिंदगी का सच चश्मा है, जो जानती है कि ये मेरा शाफी है, जो जानती है कि ये मेरा निजात दहिंदा है, जो जानती है कि इसकी बदौलत मुझे सब कुछ इस दुनिया में मिला है और कोई नहीं इस दुनिया के अंदर दे सकता, सिर्फ मेरा यीशु ही दे सकता है। ये इसका प्यार, ये इसकी मोहब्बत है आज इस दुनिया के अंदर। और कलाम कह रहा है कि वो तड़के ही निकली है, सुबह सवेरे निकली है, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत अपने यीशु के साथ, अपने क्रिस्तुस के साथ, अपने उस्ताद के साथ, अपने मालिक के साथ, अपने भाई के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ आज अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए वो निकली है और कब्र पर पहुंची है। लेकिन कलाम कहता है कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज याद रखिएगा अपनी जिंदगी के अंदर, आज हमारी जिंदगी में भी बड़े बड़े पत्थर हैं जो हमारे दिलों के ऊपर, हमारी जिंदगियों के ऊपर पड़े हैं, और उनको लुढ़काना जो है हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है कि ये पत्थर हमारी जिंदगी से दूर हो जाए। ये ऐसे पत्थर हैं जो हमें गंदगी के अंदर लेकर जाते हैं, ये ऐसे पत्थर हैं जो हमें मुश्किल के अंदर लेकर जा रहे हैं, ये ऐसे पत्थर हैं जिनकी वजह से हम दलदल के अंदर फंसे चले जा रहे हैं, हमें जिंदगी नहीं मिल रही। कलाम कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और जिंदगी मेरे यीशु के पास है। ये ऐसे पत्थर हैं जिसकी बदौलत हमें इस गंदगी से निकल नहीं रहे। लेकिन कलाम कहता है कि मेरे यीशु के पास ऐसी कुदरत है कि जो पत्थर हट नहीं सकता वो मेरा यीशु हटा देता है। और याद रखिएगा अपनी जिंदगी के अंदर आज ये सच्चाई है, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये धागे एक ऐसे पत्थर हैं जिनकी बदौलत आज हम बंधे हुए हैं। काले धागों से गिठा लगा लगा कर हमें बांध दिया जाता है। एक छोटा सा बच्चा मेरे पास लाया गया, बिल्कुल नन्ही सी जान, अभी सिर्फ 10 या 11 दिन का है। उसको बड़ी मुश्किल के अंदर मेरे पास लाया गया। उस बच्चे को बिल्कुल मुर्दा पड़ा है, हिल ही नहीं रहा था। जब मैंने उसको देखा, उसके गले के अंदर भी काला धागा, उसके बाजू के ऊपर भी बांधा हुआ है और उसकी कमर के ऊपर भी काला धागा बांधा हुआ था। मैंने उनको कहा, मैंने अपनी मिसेस से कहा कि कैंची लेकर आओ। वो कैंची लेकर आए। मैंने जैसे ही बाजू वाला धागा काटा, उसकी बाजू हिलना शुरू हो गई। हालेलुया, उसकी बाजू हिलना शुरू हो गई। जैसे ही गर्दन वाला धागा काटा, उसकी गर्दन हिलना शुरू हो गई। और जैसे ही कमर का धागा काटा, पूरा बदन ही जान में आ गया। हालेलुया, पूरा बदन ही हिलना शुरू हो गया। उस बच्चे ने अपनी आंखें खोल ली और वो देखना शुरू हो गया। और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं ये बात आपकी जिंदगी में वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर हमने खुद अपनी जिंदगी को बांधा हुआ है इन धागों से, इन मुश्किलों से, परेशानियों से हमने बांधा हुआ है। लेकिन आज सच्चाई ये है कि मेरा यीशु आपको आजाद करना चाहता है, जिसकी आज हम ईद मना रहे हैं। उस नाम
यीशु नाम से, जैसे कि मैंने पहले कहा, मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया, मुर्दे भी उठ खड़े होते हैं। और आज मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ये मरियम का प्यार है, ये मरियम की मोहब्बत है। सो क्यों पास्टर कैथरीन को बुलाया गया? क्योंकि ये सुबह की इबादत होती ही लेडीज, क्योंकि सबसे पहले कब्र पर औरतें गई हैं, वहां पर औरतें गई हैं। याकूब की मां मरियम, सलोमी गई है वहां पर। ये मरियम मगदलीनी सबसे पहले जाने वाली औरत है, एक बड़ी मुबशरा है, एवेंजलिस्ट है, जिसको बाद में उसने यीशु को अपनी जिंदगी में लेकर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, दुनिया के कोने कोने तक, जब तक जिंदगी रही, रूह से भरी रही, और दुनिया के कोने कोने तक इसका नाम फैला दिया उसने। हालेलुया, हालेलुया, ये उसका प्यार। आज हमारा प्यार कहां पर है? हमारी मोहब्बत कहां पर है? याद रखिएगा अपनी जिंदगी के अंदर, आज हमारा प्यार भी ऐसा ही होना चाहिए खुदा के साथ, जिस तरह ये औरत कर रही है, जिसमें से बदबूएं निकली है। आज खुदा हमें कितनी बरकत देता है, कितनी नेमतें देता है। हम जो मांगते हैं खुदावंद हमें दे देता है, हम जो चाहते हैं खुदावंद हमें मुहैया कर देता है। अभी तो रात को मांगते हैं, सुबह उठते हैं, हमारे आगे पड़ा होता है। कलाम कहता है ज़बूर 127 में, वो तो अपने तालिब को, अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। और याद रखिएगा अपनी जिंदगी के अंदर, आज मेरा और आपका खुदा हमें नींद ही में दे देता है। और याद रखिएगा अपनी जिंदगी के अंदर, आज मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं आपको कि एक ही सच्चाई है, वो हमें नींद ही में देती है, और वो मेरा यीशु मसीह नासरी खुदा का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी मोहब्बत कहां तक खुदा के साथ है? हमारा प्यार कहां तक खुदा के साथ है? हम कहां तक हैं? हम क्या चाहते हैं खुदा से? आज अगर हम लेना चाहते हैं तो याद रखिएगा अपनी जिंदगी के अंदर हमें खुदावंद से मांगने की जरूरत है, हमें आज खुदावंद से लेने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस प्यार को खुदा के साथ बांटने की जरूरत है, जिस तरह आज मरियम मगदलीनी जो है वो अपने प्यार को आज बांट रही है खुदा के साथ। सुबह तड़के उठी है और अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए कब्र पर भागी जा रही है, लेकिन याद रखिए वो अभी इस नविश्ते को नहीं जानती, अभी नहीं जानती कि मेरा यीशु जो है वो कुदरत वाला है, मेरा यीशु जो है उसको जिंदगी लेने का भी इख्तियार है, जिंदगी देने का भी इख्तियार है। और वो इस नविश्ते को नहीं जानती, वो जानती है कि शायद उसको मैं कब्र में देखूंगी, वो कब्र में पड़ा होगा, मैं उसकी लाश पर जाकर मुर और ऊद जो है वो उसकी खुशबू लगाऊंगी। लेकिन याद रखिएगा अपनी जिंदगी के अंदर जब वहां पर पहुंचती है तो पत्थर लुढ़का होता है और सिर्फ कफन वहां पर पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा यीशु जी उठा है। हालेलुया, मेरा यीशु जी उठा है, वो जिंदा है और जिंदा रहेगा हमेशा के लिए। और एक वक्त आने वाला है कि जिसकी आज हम ईद मना रहे हैं वो बादलों के रथ पर आएगा और हमें भी साथ लेकर चला जाएगा। हालेलुया, हमें भी साथ लेकर जाएगा। और यहाँ पर कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, अगर कलाम में आगे पढ़े तो कहता है बस वो शमौन पतरस वो दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था। कलाम कहता है कि यीशु जो है जिसे अजीज रखता था, आज वो मुझे भी अजीज रखता है, आज वो आपको भी अजीज रखता है। खुदावंद ने आपको बड़ी नेमतों से नवाजा है, खुदावंद ने आपको बड़ी बरकतें दे रखी हैं और रोज देता है, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि ज़बूर 103 में उसने लिख दिया है कि मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। रोटी के बदले पत्थर नहीं देता, वो हमें जो हम मांगते हैं उससे बढ़कर हमें दे देता है। हालेलुया। तो कलाम कहता है जिसे वो अजीज रखता था, खुदा आज हमें अजीज रखता है, जो उसके करीब हैं, जो खुदा के मानने वाले हैं, जो उसके डर और खौफ में रहते हैं, खुदा उनको अजीज रखता है। और आज मेरा और आपका खुदा हमसे मोहब्बत करता है। हालेलुया, जिसकी आज हम ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं, वो हमसे मोहब्बत रखता है, वो हमें अजीज रखता है। वो सिर्फ शमौन पतरस यूहन्ना को अजीज नहीं रखता, बल्कि वो हमें भी अजीज रखता है। और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए, हमें मालूम नहीं उसे कहां रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा, यानी कि यूहन्ना पहले पहुंच गया और उसने झुककर नजर की, सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर न गया। शमौन पतरस के पीछे पीछे पहुंचा
और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हुए हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ है, एक जगह अलग पड़ा है। उस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक इस रिश्ते को नहीं जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि मरियम मगदलीनी कब्र पर खड़ी रोती है, वो रो रही है कि मेरे मसीह को पता नहीं कहां पर ले गए। आज याद रखिएगा अपनी जिंदगी के अंदर, आज अगर ये तड़प हमारे अंदर आ जाए, ये तड़प हमारे अंदर आ जाए तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रूह की नेमतें, रूह के फल फिर हमसे दूर नहीं है, दुनियावी नेमतें हमसे दूर नहीं है। अगर ये मोहब्बत आज हमारे अंदर आ जाए, ये तरफ हमारे अंदर यीशु के लिए आ जाए, जिसकी ईद आज हम ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं, याद रखिएगा अपनी जिंदगी के अंदर दुनिया की सारी नेमतें खुदावंद हमें दे देगा। और याद रखिएगा कलाम कहता है हमारी जिंदगियों के अंदर सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। याद रखिएगा कलाम मुकद्दस में लिखा गया है कि सच्चाई ये है, उसने कहा राह, हक और जिंदगी, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। आज सच्चाई ये है कि मेरे यीशु ने मौत और कब्र पर फतेह पाई है। हालेलुया, मौत और कब्र पर फतेह पाई है। आज सच्चाई ये है, आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे यीशु की कब्र खाली है और खाली रहेगी। आज सच्चाई ये है कि वो जो था, जो है, जो आने वाला है, वो खुदाए कादिर मुतलक है। आज सच्चाई ये है कि वो यहोवा यरी है, वो यहोवा शालूम है, वो यहोवा यसी है, वो मुहैया करने वाला बाप है। और कलाम कहता है कि तू अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। आज सच्चाई ये है कि वो कहता है सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आज सच्चाई ये है कि 38 साल का बीमार शिफा पा गया एक नाम से, यीशु नाम से। आज सच्चाई ये है कि 12 बरस से मायूस औरत ने जो है उसके पल्लू को छुआ तो वो जिंदगी शिफा पा गई। एक नाम है दुनिया के अंदर और वो यीशु नाम है। 18 बरस से वो कुबड़ी औरत पड़ी हुई है, एक नाम से, यीशु नाम से शिफा पा गई। वो जो मुर्दा बेटी है वो खुदा के नाम से, वो यीशु के नाम से उठ खड़ी हुई। और याद रखिएगा आज ये भी सच्चाई है कि नुमान कोड़ी ने वो गोते लगाए साल और खुदा के नाम को जलाल मिले कि मेरे यीशु नाम से वो भी शिफा पा गया, क्योंकि यीशु ने कहा, कलाम कहता है, वाज़िया करता है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और कलाम ये कहता है मगर खूनी जादूगर, हरामकार, कुत्ते जादूगर जो है ये खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। आज सच्चाई ये है, कलाम कहता है कि खुदावंद अपने डरने वालों की चारों तरफ अपना पाक फरिश्ता हिफाजत करता है। आज सच्चाई ये है, कलाम कहता है बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे रह सकते हैं मगर खुदावंद के ताले किसी नेमत के मोहताज न रहेंगे। आज सच्चाई ये है कि वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, लश्करों का खुदा है। आज सच्चाई ये है कि उसने मौत जरूर ली। और सच्चाई ये है कि कलाम कहता है कि वो हफ्ते के दिन अपने काम को, अपने मिशन को पूरा करने के लिए वो उतर गया पाताल के अंदर, ईमानदार रूहों को लेकर वो आसमान पर चला गया। आज सच्चाई ये है कि उसने जान देकर और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जिंदा हो गया। हालेलुया, मौत और कब्र पर उसने फतेह पाई है। और याद रखिएगा अपनी जिंदगी के अंदर आज कलाम कहता है, वाज़िया करता है हमारी जिंदगियों के अंदर कि आज सच्चाई ये है कि उसकी कब्र खाली है। हालेलुया, हालेलुया। आज सच्चाई ये है कि उसकी कब्र खाली है। आज सच्चाई ये है, वो कलाम में वाज़िया लिखता है, अगर तुम मुझ में कायम, मेरा कलाम तुम में कायम, जो चाहोगे, जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज सच्चाई ये है, वो कहता है कि ये हमारा कायम रहने वाला शहर नहीं, हमारे लिए आसमान पर नया यरूशलेम बना दिया गया है। आज सच्चाई ये है, कलाम कहता है कि वो हमारी सिपर है। हालेलुया, वो हमारी ढाल है, वो हमारा महकम किला है। याद रखिएगा सादिक के बारे में कह दिया गया,
ज़बूर 140 13वीं आयत, वो कहता है कि सादक ही खुदा की हुजूरी में खड़े रह सकेंगे। वो कलाम में कहता है सादक ही खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। और आज हम शुक्रगुजार हैं उस खुदा के बेटे के, यीशु मसीह नासरी के, जिसने जान देकर आज हमें बचा लिया और मौत और कब्र पर फतेह पाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। जिंदा है, जिंदा रहेगा, उसकी कब्र खाली है और खाली रहेगी हमेशा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हम कहां पर खड़े हैं? कलाम कहता है सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? अभी पिछले दिनों एक बेटा शेख ज़ायद हॉस्पिटल में, उसमें लश्कर आया हुआ था और वो बोल रहा था उसके अंदर से, याद रखिएगा अपनी जिंदगी के अंदर मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी हमारी जिंदगी के अंदर इस दुनिया में रहते हुए, लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा यीशु हमें मुश्किलों में से निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। बड़ी मुश्किल में था, बड़े ईमानदार लोग भटक गए, किसी पीर फकीर के पास चले गए उस बच्चे को लेकर, वो बच्चा और ज्यादा मुश्किल के अंदर पड़ गया। याद रखिएगा, ये लोग आपसे पैसे लेंगे, ये लोग आपको मुश्किलों में डाल देंगे, लेकिन एक नाम जिसकी हम ईद मना रहे हैं वो हमें मुश्किलों में से निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें मुश्किलों में से निकाल देगा। आज याद रखिएगा, सच्चाई ये है कि मेरा यीशु आने वाला है। हालेलुया। वो बादलों रथों की सवारी करके वो इस दुनिया में उतरेगा। ज़करिया की किताब में लिखा है, कोहे ज़ैतून से गया, कोहे ज़ैतून पर वापस आएगा, पहाड़ शुमाल जुनूब को सिरक जाएगा, एक बड़ी वादी होगी वहां पर यीशु का जलाल होगा। और कलाम कहता है कि ईमानदारों की रूहें जिंदा हो जाएंगी, कब्रें खुल जाएंगी, सिर्फ मेरे यीशु की आवाज से। हालेलुया। मेरा यीशु बोलेगा तो कब्रें खुल जाएंगी। याद रखिएगा, अपनी जिंदगी के अंदर मेरा और आपका यीशु मौत और कब्र पर भी फतेह पाते हैं। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी माफ कीजिएगा, बड़े दिनों से थके हैं, 5 ही बातें लगातार करवाई हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। मैं कलीसिया को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जिन्होंने भरपूर तरीके से साथ दिया और वो यहाँ पर आए, पूरी इबादतों में वो शरीक हुए। खुदा के नाम को जलाल मिले। उन लोगों का भी जिन्होंने हर तरह से खुदा के खादम का साथ दिया, रुपए पैसे से। मैनेजमेंट ने पूरे तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन आज लेडीज जो थी, जितनी भी मैनेजमेंट थी, उनको मैंने कह दिया था कि आज वो जाकर खाएंगे, भाई जाकर इंतजाम करेंगे। और खुदा के नाम को जलाल मिले। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, भाई सैम का, उनके खानदान का, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाई जिन्होंने बहुत ही मजेदार नाश्ता दिया, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त नाश्ता दिया कलीसिया को उन्होंने। और बहुत लोग थे यहाँ पर, बैठने की जगह नहीं थी, बहुत लोग यहाँ पर आज सुबह मौजूद थे। सो खुदा के नाम को जलाल मिले। मेरा और आपका खुदा, मेरा ईमान है हम अगला ईस्टर भी देखेंगे, अगला गुड फ्राइडे भी देखेंगे और खुदा के नाम पे जलाल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम खुदा से जो मांगते हैं हमें मिल जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां, लेकिन सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना। उस मालिक ने जिसने फरमाबरदारी की अपने बाप की और खुदा के नाम को जलाल मिले, उसका वसीला आज हम नजात याफ्ता है। सो आए अपने कदमों पर चंद लम्हों के लिए खड़े हो। प्रेज द लॉर्ड। चंद लम्हों के लिए अपने कदमों पर खड़े हो और खुदा के नाम को जला देंगे। आए दोनों हाथ लहराएं, ईस्टर की खुशी, ईद क़यामतुल मसीह की खुशी में आए, दोनों हाथ लहरा दीजिएगा। जिस ईद को आज हम मना रहे हैं कि हमारा यीशु जिंदा है और जिंदा रहेगा। हालेलुया। उसकी कब्र खाली है और खाली रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए सब अपनी आंखों को चंद लम्हों के लिए बंद करेंगे और खुदा के नाम को जला देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
सब खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिएगा, खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिएगा, खुदा के नाम को जलाल दीजिएगा, क्योंकि वो मेरा और आपका खुदा अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद भला है, खुदावंद मेहरबान है, खुदावंद अपने लोगों को बरकत पर बरकत देता है और वो आज भी हमारे दरमियान में मौजूद है। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा, चंद लम्हों के लिए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइएगा और खुदा से कहिएगा कि मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी, जिसको तूने आज ये दिन बख्श दिया, जिसको तूने जिंदगी दी, सेहत दी, सलामती दी, ताकि तेरे ईद की खुशी हम मना सके और तेरे नाम को जलाल दे सके। वो खुदा से कहिएगा कि तू हमारा इफ्जी बन गया, तू हमारा कफारा बन गया, तूने हमारे गुनाह ढांप दिए। आज तेरे वसीला से हम नजात याफ्ता हैं, आज तेरे वसीला से हमें रिहाई मिली है, आज तेरे वसीला से हमें बहाली मिली है, आज तेरे वसीला से हम आजाद हुए हैं। हम झगड़े हुए थे, हम दूर थे तुझसे, तूने हमें अपने गले से लगा लिया। हम दलदल के अंदर थे, हम मुश्किल के अंदर थे, लेकिन तूने हमें अपने गले से लगा लिया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। मैं चाहता हूं कि बेटियां हालेलुया का कोर्स सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दीजिए। सब 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 मिलकर खुदा के साथ और सब मिलकर गाइएगा खुदा के नाम को जलाल। सब गाइएगा। और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे कि उसके उस खूबसूरत वक्त के लिए जिसने हमें अता फरमाया, हम उसका शुक्र करते हैं। बाप तूने इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हम सबों की बड़ी मदद, बड़ी हिफाजत की। हम तेरा शुक्र करते हैं उन तमाम तरनीम तो बरकतों बख्शिशों के लिए जो तो हमें मांगे बिन मांगे अता फरमाता है। बाप तेरा शुक्र हो, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले।
میں اس چھوٹی سی دعا کو سنیں قبول کریں کہ پیسے اس کے نام سے مانگتے ہو پا لیتے ہیں. آمین آمین آمین. تمام سے کیا تشریف رکھیے گا. اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے حضور اپنے ہدیے نذرانے پیش کریں گے. اس کے دیے میں سے لوٹائیں گے اور سب مل کے اس کے نام کو عزت اور جلال دیں گے. سامنے آئیں اور اس تمام ہدیے نذرانے کے لیے شکر گزاری کی دعا میں ہم سب کی رہنمائی کریں. ہاللیلویا ہاللیلویا. پاک قدوس عزیز مہربان زندگی کے خالق اور مالک، میں دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس قیمتی شدہ موقع کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا. تو نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے خدا، اور تو نے ہمیں زندگی تندرستی دی. میں تیرا شکر کرتی ہوں اس میٹنگ کے شروع سے لے کے آخر تک تو ہمارا ہادی اور رہنما بنا. واپس مانی تیرا شکر کرتی ہوں آئی ہوئی زندگیوں کے لیے. اے خدا جنہوں نے اپنی زندگی میں اول درجہ تجھے دیا، تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف، تیرے نام کی تمجید ہو. اے خدا اس وقت دعا کرتی ہوں تیرے دیے ہوئے میں سے جنہوں نے اپنی مٹھیوں کو کھولا، اے خدا ان کے گھرانوں کے لیے تیری برکت، تیری سلامتی چاہتی ہوں. اے خدا ان کے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ آنے دینا. اے خدا ان کی جاب پہ، ان کے کچن پہ تیری برکت، تیری سلامتی چاہتی ہوں اور تیرا فضل چاہتی ہوں. اے خدا تیرا فضل چاہتی ہوں. اس وقت تو نے ہماری مدد رہنمائی کی اور تیرا فضل ہم پہ چھایا رہا. اے خدا مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام سے آمین. آمین. کچھ اناؤنسمنٹس ہیں
जैसे कि आप सब जानते हैं बुध की इबादत का वक्त शाम 6 से 8 बजे तक है और इतवार की इबादत का वक्त सुबह 9:30 से 12 बजे तक है। आप सबसे गुजारिश है आप खुद भी आएँ और अपने साथ और लोगों को भी लेके आएँ और वक्त पर आया करें और अपनी बरकत को वक्त पे हासिल किया करें। हालेलुया हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा की सिखाई दुआ में सब शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक करना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस पर हमने कर्ज को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज से माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, हाजिर जमात के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है। और खुदा अपने चेहरे का नूर हाजिर जमात पर, तमाम बेटों और बेटियों पर हमेशा से हमेशा तक जलवा कर रखे। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रुह कुद्दूस के नाम से खुदा आप सबको बरकत दे। कैमरा बंद कर दे। याद रखिएगा, ये आज के बाद कलीसिया इस बात को ज़रा गौर से सुन ले। आपने कभी भी कोई मुस्लिम आपको कहे कि हमने आपके साथ ईद में जाना है जी, आपकी ईद देखनी है, या आपने आज के बाद कभी यहाँ पर नहीं किसी को मुस्लिम्स नहीं आपके साथ आना चाहिए। याद रखिएगा अपनी ज़िंदगी के अंदर आज इस चीज़ को गौर से ज़रा सुन लीजिएगा, ताकि आइंदा कभी भी अपनी ईद आप खुद मनाएं, इनको मत लेकर आएँ, क्योंकि ये डिस्टर्बनेस पैदा करते हैं और ये आकर देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और बाद में कोई ना कोई इश्यूज होते हैं। इसलिए कलीसिया ज़रा इस बारे में कॉन्शियस रहे कि इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें और इस चीज़ को इनको ज़रा अपने से ज़रा दूर रखिएगा। अपनी ईदों के ऊपर, त्यौहार के ऊपर इनको ज़रा दूर रखिएगा। हालेलुया। जिन दोनों बच्चों पे शक हो गया था जब वो बैठे थे, यहाँ पर आकर बैठे थे, मैंने इनकी आंखों से देख लिया था कि ये कोई ना कोई ये गड़बड़ करेंगे, लेकिन खुदा उनके नाम को जलाल मिले।